छोटी सी थी, 3 साल 4-5 साल की। पापा को उसने एक नो कह दिया, कांट यू सी आई एम बिज़ी। तो मैं किचन में, तो मैंने सुना ये तो मेरे ही वर्ड्स हैं। मैं प्रियंका को बोलती कांट यू सी आई एम बिज़ी, बाद में बात करते हैं। तो मुझे अपने आप पर ही, अपने पेरेंटिंग पर ही शक हुआ, डाउट हुआ कि आई एम प्रॉब्ली नॉट डूइंग द राइट थिंग फॉर हर। एंड एट 7 years ऑफ एज आई पुट हर इनटू अ बोर्डिंग स्कूल। देखो ये चीज़ एन वक्त पे नहीं होता है। आपको छुटपन से ही ये बात बच्चे के जहन में डालना ही पड़ता है कि दिस टू शैल पास। सबकी लाइफ में अच्छे दिन बुरे दिन आते ही हैं। बुरे दिन घबराने की बात नहीं है, ये भी पास हो जाएगा। अच्छे दिन आएगा तो सिंग निकालने की ज़रूरत नहीं, ये भी दिस टू शैल पास। तो ये ऐसे उनको अगर बिलीफ हो जाए इस बात का तो हमेशा ग्राउंडेड रहेंगे वो। और जब वो मिस वर्ल्ड बनी थी तो हमारे भी छोटे छोटे निकल गए थे। Don't believe it, I'm learning vocal music now. Wow. Hindi classical music is too late. My son was scandalized. He said, Mom, are you sure? What are you doing? I said, मुझे सीखना है। अब did you like Nick in the first go? First go, yes, immediately. He's a very, very likable person. आपको सबसे अच्छा क्या लगा उनमें कि हाँ ये मेरी बेटी के लिए सही है? Again, जैसे मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कशन किया था वैसे इसके साथ भी किया। तो we had a nice long conversation अकेले में। और मैंने समझा कि नहीं बिल्कुल सही है। How is Malti? Is she a naughty kid? Not naughty, she's a very happy child. Yeah. Who do you think she is like more like Nick or Priyanka? अब it is too early to say, फेस तो चेंज ही होता रहता, पर झलक निक का भी है, प्रियंका का भी, दोनों का ही है उसके अंदर। Hi, I am Dr. Madhu Chopra and you're watching Bollywood Hangama with this beautiful Sakshi, very smart, intelligent girl. Welcome to Bollywood Hangama. Today I have an incredible woman with me, Dr. Madhu Chopra. Welcome. Thank you. I'm very happy to be here, and you have been really persuasive. Yeah, thank you so much for doing this. I'm so glad that we are doing this. You have had an incredible journey, right? You have been a doctor, you have been I a am pilot. a doctor. Yes, you are a doctor, you are a pilot, you are a producer. There's so many things. I'm sure that I'm missing out on many more things. But I have to ask you, you became a doctor in an era like where working women were not that common. Did you face any issues while working? The field that I had originally chosen in medical stream, that was predominantly male dominated. I wanted to go in for surgery, and when I did get in, I had a very hard time pursuing it because, like I said, male dominated. So I was literally like, forced to step out of it, get out of it. I couldn't do it. Because not only was the teacher biased, the students were biased. अरे लड़की क्यों कर रही है सर्जरी, वो तो कल शादी करके प्रैक्टिस छोड़ देगी। I mean, you're depriving one legitimate boy of his seat in the medical. उन दिनों competition से होता है। Our batch was the first batch that went in for competitive admissions. तो आपने एक लड़के को deprive कर दिया सर्जरी के सीट से। It was hard, so I had to leave it. Oh my God! But your father was very supportive, and Yes, I think father. he was the one who pushed you to pursue. Anything I asked for, Yeah. any curiosity I had, my dad would. ये lines क्यों हैं? चलो palmist लगवा देता हूँ. He called a trained palmist to teach me about palmistry. फिर little things. I mean, मैं जब flying सीखता था, हमारे medical college के ऊपर से वो छोटी सी plane उड़ा करती थी. So I asked him can I do it? He said ज़रूर जाइए, तो अपने पॉकेट मनी से ही कीजिएगा। ठीक है, तो बजाय इंस्टेड ऑफ टेकिंग माय कार टू कॉलेज, फिर मैं बस से जाने लगी, अपने पॉकेट मनी सेव करने लगी, और जब हो गए थोड़े पैसे तो ज्वाइन कर लिया, फिर फ्लाइंग सीख लिया। वाओ। जब आप सक्सेसफुल हो गए, जब आप इतने इंडिपेंडेंट थे, तो कभी आपको लगा कि शायद आपको अपनी सक्सेस के लिए ओवर कंपनसेट करना हो? क्योंकि एक दौर में जब, जैसे आपने कहा, आपके लिए इतना हार्ड था, तो कभी ना कभी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ कई औरतों से इतनी अच्छी है, सो आई बेटर लाइक ओवर कंपनसेट फॉर दिस। क्या वो चीज़ आपको भी सामना करना पड़ा उस फीलिंग का? ओवर कंपनसेट तो नहीं, पर स्ट्रगल थोड़ा बहुत ही ज़्यादा करना पड़ा, क्योंकि हर समय हमें कंपेयर किया जाता था कि आपसे तो नहीं होगा, ये आप क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, जबकि इट वाज एक्सपेक्टेड कि हाँ ये तो आदमी ही कर लेगा।
मैं अपनी गाड़ी ठीक कर लेती थी, तो इट रियली पुट ऑफ द बॉयज़ कि आपकी गाड़ी में कुछ डिफेक्ट हुआ तो आपने हुड उठा लिया, मुंडे अंदर कर लिया और ठीक भी कर लिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसमें मैं खुद को आत्मनिर्भर या इंडिपेंडेंट जैसे आपने कहा वो बनाने की कोशिश। मैं फादर हमेशा इनकरेज करते थे कि कहीं भी वर्ल्ड में जाओ मोहताज नहीं होना, तो अपने को इतना बुलंद बनाओ, अपने को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कभी मोहताज ना होना पड़े किसी चीज़ के लिए। तो वो एक डिक्टम उनका जो था, जो उनका पुश था, दैट वाज माय ड्राइव। तो ओवर कॉम्पेंसेट तो मुझे याद नहीं पड़ रहा, मेरे थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा था और यस मेहनत थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ा अचीवर बनने के लिए। जितना काम ये करके 90 मार्क्स ले आएंगे तो मुझे डबल करना पड़ता था, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि आप करेंगे। फिर अपना परचम तो डालना जी बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी तरह से अपना परचम लहराया और लहरा रही हैं। आपने एक बहुत ही अच्छे इंसान के साथ शादी की, जो मतलब मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो प्रियंका के साथ पहले काम कर चुके हैं। उन्होंने हमेशा आप लोग के लिए उतनी ही तारीफ़ की जितनी प्रियंका की, और हमेशा वो सर के बारे में हमेशा कुछ अच्छा बोले हैं। तो आपको आपकी लव मैरिज थी राइट, लेकिन क्या कभी उससे पहले आपको लगा कि क्योंकि शायद मैं इतनी एजुकेटेड हूँ, क्योंकि शायद मैं वो सारी चीज़ें कर सकती हूँ या करती हूँ जो एक आदमी करता है, शायद मुझे वैसा पार्टनर या मेरे लेवल का पार्टनर मिलने में मुश्किल हो? कभी आपको ये चीज़ फीलिंग आई? हमेशा लगता था, इसलिए मैंने अपना टाइम भी लिया आराम से। तो करेक्ट पर्सन आया जब ठुक गया दिल को, फिर क्या मैंने अपने टाइम में लड़कियों को 23-24 तक शादी कर दी जाती थी। मैं तो 29 पे आके शादी की। आई टुक माई टाइम। और जब ये आए तो वी बैरली न्यू ईच अदर। उन्हें सेकेंड डे ही प्रपोज़ कर दिया, फिर पेरेंट्स आके अप्रूव करे। शादी हमारी 2 हफ्ते में हो गई, 3 हफ्ते में हो गई। पर शादी से पहले बिकॉज आई न्यू कि आई वॉज अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, और हर मेल ईगोइस्टिक मेल, और ये थे भी बहुत, कोई बर्दाश्त नहीं होता है, तो कैन ही टेक इट। तो हम गए बाहर, अपना अपना पुर्जा बनाया। मैंने कहा आपकी व्हाट डू यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, व्हाट यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन, ये 3 फहरिस्त बना के आप लाएं, मैं लाऊं। और हमारी बैठ के डिस्कशन हुई हर बात को, एक एक मतलब लाइक कंजेनियल फ्रेंड्स की तरह हमने डिस्कस किया। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं था कि बस मैं तो ऐसी रहूँगी, वो नहीं। जहाँ आप झुक सकते थे आप झुकेंगे, जहाँ मैं झुक सकती वहाँ झुकूँगी, क्योंकि शादी देखो तो कॉम्प्रोमाइज़ ही है। लव सब बाहर चला जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ एंड रिस्पेक्ट 2 उसके स्तंभ हैं, और तीसरा है ट्रस्ट। ये 3 ही स्तंभ पर शादी खड़ी रहती। फिर उसके बाद लव थोड़ा ओवररेटेड चीज़ है। लेकिन उससे पहले आपको घर से प्रेशर था कि आपकी एज हो रही है, आप शादी क्यों नहीं कर रहे? नहीं, कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं काम कर रही थी, एंड आई वाज बिकमिंग अ बेटर पर्सन। मेरी फैमिली में से कभी नहीं प्रेशर आया, बल्कि मेरी छोटी बहन बहुत ही खूबसूरत, तो उनके लिए बड़े ऑफ़र्स आते थे। जैसे उसने मेडिकल कॉलेज ख़त्म किया, उसने मना कर दिया, नहीं टाइम से पोस्ट ग्रेजुएशन करके तब करूँगी। जी, तो क्या आप, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ कि आजकल की जनरेशन में हम लोग बहुत कभी डर जाते हैं कि अगर हम अकेले रह गए तो, शायद कई लोग अभी भी इस चक्कर में सोच रहे हैं कि अब मेरी उम्र निकल रही है तो मैं फट से शादी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। क्या आप उस टाइम तक आप उस चीज़ से कंफर्टेबल थे कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं? देखिए, मेरा ये मानना है तब भी, आज भी और आगे भी, किसी लड़की को कभी किसी के मोहताज नहीं होना है। मतलब आपको आदमी क्यों चाहिए? शादी का ऐसा बंधन क्यों बांधना चाहिए आपको जब तक आपका दिल ना ठुके, करेक्ट पर्सन ना आपके रास्ते में। यू आर सिटिंग ऑन द लेज, ये तो सवाल ही नहीं उठता। आज की लड़कियां चाहे नौकरी करे चाहे ना करे, अपने दोनों पैर पर खड़ी हो सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने घर को पाल पोस लेगी। आदमी नहीं कर पाएगा, लड़की कर लेगी। पार्लर चला ले घर के अंदर, सिलाई मशीन चला ले घर के अंदर, पढ़ी लिखी ना भी हो। मेरे पास हैं ऐसे लोग, और प्रियंका बहुत सपोर्ट की है ऐसे लोगों को। सोइंग मशीन उनके घरों में दी है, टीचर्स रखी है, बहुत कुछ किया हम लोगों ने। तो आई नो कि लड़कियों में वो जोश है
ठीक है। तो कोई लड़की कभी, मैं तो सबको कहती, ये कंपल्शन नहीं रखो अपने लिए कि बेड़ी बांध लिया कि मुझे तो शादी करनी चाहिए, गाय गोरू किसी से बांध दो, किसी भी कैसे भी बंदे से बांध दो कि मैंने शादी कर ली। क्या है शादी में? एक ज़माना था जब आपको शादी प्रोटेक्शन के लिए किया जाता था। आपके इर्द गिर्द लोग बहुत अच्छे नहीं थे और लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए शादी का एक रस्म होता था। अब किस लिए ज़रूरत है? मैं कहती, मैंने इतनी सक्सेसफुल लड़कियों को देखा जो अकेली हैं, स्वावलंबी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उनको हर ज़रूरत अपनी पूरी करती हैं विदाउट बीइंग टाइड डाउन इनटू अ रिलेशनशिप कॉल्ड मैरिज। थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, सब नहीं मानते हैं, माँ बाप तो बहुत गुस्सा करते हैं कि आप क्या बोल रही हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आज की लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं सोचना ही नहीं चाहिए। गलत या सही? नहीं, आप मानती हो? शायद मेरी मम्मी सुन रही हो। देखो मम्मा, एनीवे फास्ट फॉरवर्ड टू अ फ्यू इयर्स, जब प्रियंका अब्रॉड गई अपनी स्टडीज़ के लिए, उन्होंने अपने काफ़ी किस्से बताए कि उनके साथ जो भी हुआ उनके लिए काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था और उतना ही बुरा एक्सपीरियंस भी था। लेकिन वो 4 साल आपके लिए कैसे थे? बहुत मिस करती थी। उन दिनों तो फ़ोन था नहीं, कॉन्टैक्ट्स होते नहीं थे। जब वहाँ से मेरी माँ छोटी बहन के घर रहती थी तो उनका फ़ोन आता था, तभी हम हाल चाल पूछते। और हम आर्मी में थे जब तक, तो आर्मी का भी फ़ोन हर के लिए अवेलेबल नहीं था, यू हैव टू कम थ्रू द आर्मी कनेक्शन। तो शायद हम हफ्ते में या 10 दिन में एक बार बात करते थे। बहुत टफ़ था वो। उससे पहले मैंने उसको बोर्डिंग स्कूल में डाला था, वो भी बहुत टफ़ था। पहली बच्ची और ख़ानदान में पहली बच्ची, और 7 साल तक वो अकेली थी, तो इट वाज रियली हार्ड। और जब बाहर गई, मैं तो मुतमईन थी कि फैमिली के साथ रह रही तो कोई वरी वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़ता हुआ बच्चा, टीनेजर, उस समय पेरेंट्स का साथ होना बड़ा ज़रूरी, ये मैं समझती हूँ कि जो उसके दिल की बात पेरेंट्स बिना कहे समझ सकते हैं, वो चाहे कितना भी प्यार करे रिश्तेदार, उनको समझना भी मुश्किल है। प्लस उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है टू टेक केयर ऑफ समवन एल्सेस चाइल्ड, कि कहीं मैं चूक ना जाऊँ, कुछ मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मुझे उनका सवाल का जवाब देना पड़ जाए, क्योंकि उस समय बच्चों का हार्मोन्स उछलता होता है, उस समय यू हैव टू बी रियली केयरफुल। तो फिर मैं वापस ले आई उसको, 12 साल की गई, 15-16 में ले आई वापस। तो आपका और प्रियंका का रिश्ता कैसा था टीनेज में? क्योंकि ज़्यादातर टीनेज में ही ज़्यादा मदर डॉटर या फादर सन में फ्रिक्शन होता है। आपका कैसा रिलेशन था? मोस्ट ऑफ अ टीनेज तो बाहर थी जी। 12 साल से 16 साल तक बाहर थी। 17 पे आई, आती उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स लग गए, तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन या कितना प्यार करती हो कि मुझे नहीं करती, मुझे क्यों अबैंडन किया, इस सब का टाइम ही नहीं मिला था। शी जस्ट डाइव्ड इनटू स्टडीज़। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो आर्मी स्कूल में गई, ज्वाइन करी, वहाँ तो कुछ ट्यूशन्स लेते थे, तो दिन भर उनका स्कूल, पढ़ाई, ट्यूशन्स, घर, होमवर्क, इसी में रहता था। तो बहुत कम, हमारी भी उस समय प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी, हमारी यही था कि बस एक टाइम का खाना सब साथ बैठ के खाएंगे, और उस दौरान जितनी बातें हो सकती थी वो करें, क्योंकि सबका अपने लाइफ में एक फोकस था। हम लोग भी दोनों जने बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, इनको भी अपने एग्ज़ाम का फोकस करना था। मेरे साथ मेरी माँ और मेरी सास दोनों रहती थी, तो सपोर्ट तो 100% या 200% था मेरे पास। तो रिलेशनशिप बहुत कम, मैं बोलूँगी कि मेरा बहुत कम उसके साथ टाइम गुजरा। पापा के साथ वो ज़्यादा क्लोज थी। तो अगर हम आपके पेरेंटिंग स्टाइल की बात करें, एक चीज़ जो आपने अपने मम्मी पापा से ली कि ये चीज़ इस तरह से तो मैं ज़रूर पेरेंट करूँगी अपने बच्चों को, और एक चीज़ कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगी जो मेरे पेरेंट्स ने जिस तरह से डील किया। तो जो मैंने अनुसरण किया, उनका फॉलो जो किया मैंने, वो था कि उड़ान भरने दो, जो करना चाहे करे। मेरे फादर यही कहते थे, अब तुम अपने आप को ऊंचा देख रही तो मेरे कंधे पे खड़ी हो, गिरोगी तो मैं नीचे हूँ, सो डोंट वरी, फ्लाई, जो करना करो सोच समझ के करना, लेकिन और एक एथिक्स के दायरे के अंदर करना। वो दायरा बना दिया गया था, हमें बताया गया था ये अच्छा है, ये गलत है, उस दायरे के अंदर ही रहिएगा और फिर मर्ज़ी जो करिए। तो मुझे बहुत फ्रीडम था, दैट वाज वेरी गुड। यही चीज़ मैंने अपने बच्चों दोनों को दिया। लेकिन एक बार 1 मिनट पॉज करो, सोचो, कोई डाउट है तो बात कर लो हमसे, लेकिन करो अपने मन की,
अगर आई कैन कन्विंस यू कि आपका सोच ये गलत है तो आप मेरी मान के चलो, अगर नहीं कन्विंस करती तो अपनी मान के चलो। उसका जो आउटकम है वो आप ही का है, अच्छा आउटकम है तो भी आपका, बुरा है तो भी आपका। तो ये कहने से बच्चे 2 मिनट ज़रूर पॉज करते हैं कि अगर मैं करूँ कुछ गलत हो गया तो, है ना। तो इम्पल्सिव नहीं रहे दोनों, ये मैंने अपने पेरेंट्स से इसको लिया। और जो नहीं करना था वो कि बहुत रेजिमेंटेशन था कि 4 बजे सुबह उठिए तो 5 बजे गाना मास्टर आ गया, 6 बजे ये हो गया, 7 बजे हो गया, स्कूल गए, शाम को आए तो डांस क्लास गए। बहुत रेजिमेंटेशन था स्ट्रिक्टली, तो पूरी लाइफ हमारी रेजिमेंटेशन थी। तो वो रेजिमेंटेशन मैंने नहीं डाला। जी, जब प्रियंका मिस वर्ल्ड बन गई और उनको फिल्म ऑफर्स आने शुरू किए, एक्चुअली आपने बताया था कि वो थोड़ा सा घबरा रही थी, आपने उनको पुश किया कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है। नहीं, ऐसी बात नहीं थी, अपॉर्चुनिटी वाली बात नहीं, कि गैप ईयर लिया हुआ था उसने कि 12th के लिए उसको केमिस्ट्री की तैयारी नहीं थी, गैप ईयर लिया हुआ था। तो जब गैप ईयर में आपके पास वक्त है, फुर्सत है, कौन जानता है कि जीतोगी नहीं जीतोगी, यहाँ तक आ गई हो, ये अपॉर्चुनिटी सामने रखा हुआ है तो ट्राई कर लो। अच्छा हो गया तो अच्छा हो गया, नहीं हो गया तो वापस पढ़ाई पे तो आना ही है वापस, ऐसे। जी, जो लोग, हम लोग फिल्म इंडस्ट्री से नहीं होते हैं, स्पेशल उस ज़माने में, क्योंकि इतना सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, हर किसी के दिमाग में एक इमेज होती है कि फिल्म इंडस्ट्री ऐसी होगी या फिल्म इंडस्ट्री वैसी होगी। और जब आपने खुद, जब गेट्स ओपन हुए और आप जब लोगों से मिले, आपको कुछ लगा कि अच्छा मैं ऐसा सोचती थी बट ऐसा नहीं है, या ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा है, लोग, मतलब एक परसेप्शन जो आपने बॉलीवुड का खुद एक्सपीरियंस किया? वैसे तो हम लोग बिल्कुल फिल्म और बॉलीवुड एनवायरनमेंट से बिल्कुल ही परे थे। आर्मी में थे, जगह जगह ट्रैवल करना था, फिर बरेली में थे, तो एकदम ही परे थे। लेकिन एक इमेज था माइंड में कि बहुत ग्लैमर है। जब देखा हकीकत कि तो ग्लैमर के पीछे कितना है ना, किनके सेट्स कैसे दिख रहे हैं, कितने शॉट्स ले रहे हैं, कितना उनके ऊपर मेहनत किया जाता है, तो जाके ऑडियंस ग्लैमर देखती है। तो वो थोड़ा पहले हम लोग बड़ा वो हो गए, घबरा गए कि ये तो बहुत हार्ड वर्क है इस ग्लैमर के पीछे, विच एज एन ऑडियंस हमें पता ही नहीं चलता था। दैट इज़ ओनली थिंग, अदरवाइज। और जो एक्टर्स हमारे टाइम के थे सब इतना अपने को बना के रखते थे बाहर लोगों के लिए, लेकिन आपस में बिल्कुल ही ईजी, कैजुअल, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के जैसे। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। जो हमारा इम्प्रेशन था वो तो बिल्कुल ही नहीं लगा मुझे जब हम आए। हम अच्छे लोगों से ही मिले, अच्छा ही हुआ। कभी कोई ऐसा मतलब अपसेट होने वाली बात या स्टॉप, डोंट डू दिस वाली बात आया ही नहीं हमारे तरफ से। प्रॉब्लम बिकॉज डॉक्टर साहब भी वैसी पर्सनालिटी के थे, पर्सनेबल पर्सन थे, अच्छा उनका सलूक था लोगों के साथ भी, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा। तो एक रिस्पेक्ट बना रहता था उनके लिए भी और वो भी उनको देते थे। तो ये रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसका फल प्रियंका को, इतनी छोटी सी थी, 17-18 साल की जब आई थी, सब प्रियंका को अच्छे से मिला। पापा का बहुत बहुत सपोर्ट था। यू हैव डन सो मच। आई एम श्योर आपको भी फिल्म ऑफर्स आए होंगे। वुड यू एवर एक्ट इफ गिवन अ चांस? आई एम वेरी कैमरा शाई। अब तुम कह रही हो तो तुम्हारी तरफ देख रही, मैं उधर नहीं देख रही। तो नहीं, नेवर। Okay. एज अ डॉक्टर आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल। ये मेरा स्पेस है, Right. मोर कॉन्फिडेंस। Right. Okay. I have to ask you about this one phase which Priyanka has revealed in her book, when her sinus operation, like for her nose, went wrong. Now, I'm sure ये किसी के साथ भी, it's not even about कि आप actress हो कि नहीं, ये किसी के साथ भी होगा तो it's like a big jolt. And before that, I have to say, before reading her book and like a couple of years ago, I always used to think, you know, her life is so amazing. She became Miss World, then she became successful, she's pretty, she has everything going for her. But when I read her book, that, oh my God, nobody's life is perfect, and she has had as many lows, no, as many highs she has had, that kind of was like, okay, like, you know, how did you help her in that phase? एक खिलौना होता था, याद है तुम लोग के टाइम था कि नहीं, एक डॉल था, उसको हिट करो तो गिरता था, वापस खड़ा हो जाता था। जी। प्रियंका का पर्सनालिटी वही है, हिट मी उसको हम बोलते थे। तो प्लास्टिक का डॉल होता था, अंदर हवा भरा होता था, नीचे कुछ हैवी वेट होता था,
हिट इट एंड इट विल कम बैक। तो जैसे मैं कहती प्रियंका की वही पर्सनालिटी थी, उसको कोई नीचे दबा के रख नहीं सका। वो पलट के डबल वापस और जोश के साथ, सिर्फ हार्ड वर्क के ज़रिए, सीरियस हार्ड वर्क, सीरियस फोकस। उसके अलावा मैंने उसकी लाइफ में कुछ देखा ही नहीं। शी नेवर वेंट फॉर पार्टी, शी नेवर डिड एनीथिंग। कहाँ पे जाना, लाइन तैयार करना, घर रहना, मतलब सोबर रही है और डेडिकेटेड रही है। जी, of course when she became famous, media is a huge part of being a star. A lot of stories are written about celebrities, and she has mentioned in her interviews that when something bad was written about her, she used to feel for you people, that people forget that even I have parents, I have a brother, how can you write something like this about a woman, and that is and something that is not even true. How did you deal with the first bad piece of report that was written about her? आई रिमेंबर एक हमारे जान पहचान की बेटी का ही आर्टिकल था किसी न्यूज़पेपर में, एंड शी हैड बीन वर्किंग इन दैट न्यूज़पेपर फॉर 3-4 years. उनको हम बहुत अच्छे से जानते थे। तो शी रोट समथिंग नास्टी, जबकि वो हमारे घर खाना पीना, हम उनके घर जाना, इतना था। तो शी टुक द लिबर्टी कि मैं उनसे अपोलोजाइज़ कर दूँगी बाद में कि ये मुझे लिखना ही था, बिकॉज माई एडिटर टोल्ड मी कि कुछ स्पाइसी लेके आइए। तो डॉक्टर साहब और पापा उसको बुलाए अपने घर, बिठाए और ज़बरदस्त मीठा खट्टा मिर्ची सब पिलाए अच्छे से, मतलब डांट के कि अपनी बच्ची जैसी थी। फिर क्या उसको समझ आई बात, अपोलोजाइज उसने किया ही किया, फिर कभी नहीं लिखा। पर फिर प्रियंका बैठी हमारे साथ, हमें बोली कि ये यू आर द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु नोज द ट्रूथ। तो किसी का कोई परसेप्शन हो, इससे आपको क्या दिल में लगने, मैंने लोग क्या कहेंगे, लोगों से कब आपको डर लगा? लोग का काम है कहना, कहते रहेंगे। यू आर द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड हु नो द रियल फैक्ट्स। छोड़ो, डोंट इवन रिस्पॉन्ड। मैं तो शुरू में बोल देती थी, रिस्पॉन्ड करती थी, तो उस कहती थी नहीं रिस्पॉन्ड भी मत करो, भड़को भी मत, इसका कोई मीनिंग नहीं। वो भी रोज़ी कमा रहे हैं, वो जब तक मसाला नहीं लिखेंगे उनका आर्टिकल बिकेगा नहीं, उनका पेपर लेगा नहीं कोई, तो वो भी कमा रहे हैं। लेट देम डू व्हाट दे डू, वी नो व्हाट वी आर। तो ये बात फिर हमें समझ आ गई कि एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग टू मेक अ लिविंग, स्ट्रेट और नैरो, टेढ़ा मेढ़ा। राइट। पेरेंटिंग स्टाइल पर आपसे एक और क्वेश्चन है। देयर इज अ मीम गोइंग ऑन सोशल मीडिया दैट देयर आर इवन जोक्स अबाउट इट दैट फर्स्ट चाइल्ड इज लाइक एन एक्सपेरिमेंट, सब ट्राई कर लो इस पर, सेकेंड चाइल्ड तक आते रहते हैं, ठीक है तुम्हें जो करना है करो। How did you raise Priyanka and her brother Siddharth differently? Because I'm sure you must have also learned along the way after raising Priyanka for 7 years. ऑनेस्ट जवाब कि डिसऑनेस्ट? Honest. प्रियंका बहुत चहेती थी सबकी, ख़ानदान की पहली बेटी थी तो सबकी बहुत चहेती थी, बहुत लाड प्यार से पली। फिर भी कई बार मुझे मलाल होता है इस बात का कि क्यों मैंने ये स्टेप्स लिए। छोटी सी थी, 3 साल 4-5 साल की, पापा को उसने एक नो कह दिया, कांट यू सी आई एम बिज़ी। फिर डैड ने बोला होगा तो वो शी वॉज प्लेइंग विद हर डॉल्स, कहती कांट यू सी आई एम बिज़ी। तो मैं किचन में, तो मैंने सुना ये तो मेरे ही वर्ड्स हैं, मैं प्रियंका को बोलती कांट यू सी आई एम बिज़ी, बाद में बात करते, तो वही मुझे रिपीट कर। तो मुझे अपने आप पर ही, अपने पेरेंटिंग पर ही शक हुआ, डाउट हुआ कि आई एम प्रॉब्ली नॉट डूइंग द राइट थिंग फॉर हर। एंड एट 7 years of age I put her into a boarding school without my husband's approval, without the family's approval. प्रियंका को भी मैंने काउंसलिंग नहीं की थी, सिर्फ टेस्ट दिलवाया, एडमिशन हो गया, बहुत अच्छा करी, एडमिशन हो गया, उसको जाके वहाँ छोड़ के चली आई। बहुत रोई, बहुत रोई, मतलब वो 4 साल जो बोर्डिंग में थी बहुत टफ था। लेकिन एक डिसीजन था जो ले लिया, क्योंकि सख्ती भी करना चाहिए था, लाड़ प्यार भी बहुत था उसके लिए, पर थोड़ी सख्ती भी थी। पर वहाँ से जो निकल के आई, बहुत कॉन्फिडेंट बच्ची निकल के आई, तो दैट वाज अ गुड थिंग। और उसके बाद जब वो मिस वर्ल्ड बनी, तब तक सिद्धार्थ 9-10 साल के हो गए थे। तो मैं प्रियंका के साथ निकल पड़ी और पापा जॉब पे थे, तो सिद्धार्थ बहुत हद तक बगैर पेरेंट्स के अपने टीनेज ईयर्स क्रॉस किए। नानी थी
लेकिन वो बात नहीं थी जो पेरेंट्स के साथ होता। फादर आते थे काम से तो कैसा था दिन, होमवर्क ये वो सब देख लेते थे, पर वो जो हम लोगों ने प्रियंका को भरपूर दिया वो सिद्धार्थ को कम रहा। मुझे लगता कि मैंने नहीं दिया, पर वो अपनी तरफ से कभी फील नहीं किया क्योंकि नानी थी तो घर पे उसको, और बेटा था, प्यार तो बहुत मिलता है उसको। तो मुझे ऐसा ही लगता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। बोथ आर वेरी कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन। कभी आज तक तो मैंने नहीं सुना कि आप तो नहीं थे हमारे साथ, यू अबैंडन में, ये तो सुना नहीं मैंने, क्योंकि दूर रह के भी हम लोग कनेक्टेड रहते थे। जी जी। जब आप टीनेजर थी, आपकी सेल्फ इमेज कैसी थी? हाउ डिड यू थिंक अबाउट योर लुक्स? बिकॉज इन दैट एज people get really conscious about that. So how did you see yourself? Again, I will say my father's role was very important here. Growing up when we were 13, 14 and just blooming, as they say, my younger sister was very pretty, very beautiful, very good in studies, always a topper. And so I used to be having a low self-esteem about myself. So my father sat me down and said, had a conversation, किस चीज़ में आपको लगता है कि आप अच्छे हो? मैंने कहा मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, डांस में, गाना में अच्छी हूँ, क्योंकि उसमें आप अव्वल आओ। वो उसमें अच्छी है, उसमें अव्वल आ रही, तुम इसमें अच्छी, उसमें अव्वल आओ, बस। और क्या है? बाकी एक कहावत कहते थे, 16 साल की उम्र में घोड़सी भी सुंदर लगे, मतलब गधी भी सुंदर दिखती। तो ये मुझे कहते थे कि आप वेट करो, योर डेज विल ऑल्सो कम, डोंट लूज हार्ट। And then of course he used to, घरेलू नुस्खे. He started buying those magazines जिसमें घरेलू नुस्खे आते थे कि ये पढ़ो और ट्राई करो, ये सब काम की चीज़ें हैं, कोई हानिकारक चीज़ नहीं है. So that's why I'm a big proponent of do it yourself home remedies first. I completely believe in that. और वाकई में जब देखा मैंने मेडिकल कॉलेज जाते जाते तो मैं हुरपरी में गिनी जाने लगी. I was all right. आप esthetician हो and you have studied like Botox and fillers and you have learned that from Florida. If I'm not wrong, you studied that while Priyanka was shooting for Dostana, right? So now it has become very popular even in India. People go and people are like blatantly accepting also that yes, I have done this, I have done that. What do you think is the importance of fillers and Botox in today's world? I think अगेन दिस इज़ माई पर्सनल थाट कि मैन और वुमन दोनों के लिए आज की तारीख में, आज जैसे उनका जॉब है, प्रोफाइल है, जितना कंपटीशन है, यू डोंट हैव टू बी जस्ट इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, गुड, यू हैव टू बी अ कॉन्फिडेंट लुकिंग पर्सन ऑल्सो. पर अगर आपको अपनी सूरत शक्ल सुबह मिरर में देख रहे हो तो सैड लेके जा रहे हो, तो चेहरा उतरा हुआ जा रहा, मायूसी रहती है आपके साथ, तो आपका काम भी वैसे ही रहेगा. एंड योर बॉस इज़ ऑल्सो नॉट इम्प्रेस्ड बाई. तो मुझे लगता है आज बच्चों को या यंग एडल्ट्स को बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फिज़िकल अपीयरेंस का लुक आफ्टर ज़रूर करें. नॉट बिकॉज आई एम अ एस्थेटिशियन एज यू से, आई एम ए ENT स्पेशलिस्ट, आई एम अ जनरल प्रैक्टिशनर, फैमिली प्रैक्टिशनर आई बीन. सो मेरा मानना है कि एजिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप रोक नहीं सकते, पर उसको डिले करने के कई तरीके हैं. यंग एज से ही शुरू करते हैं तो कुछ लोग बहुत देर तक यूथफुल दिखते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं. तो स्ट्रगल, स्ट्रेस, ये सब दिखता है चेहरे के ऊपर. तो जिनकी लाइफ में ये है वो तो है ही. तो यहाँ पे एस्थेटिशियंस काम आते हैं. वो आपके स्ट्रेस वरीज़ के लाइंस हटा सकते हैं. स्ट्रेस वरीज़ नहीं हटा सकते, पर आपकी लाइंस हटा सकते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंट पर्सन चलके जाएँ. और वाकई मैंने देखा जॉब में बहुत हेल्प होता है. स्पेशली लड़कियां तो कॉलेज की स्टूडेंट्स आ रही हैं, हाई स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द बॉडीज़. ये ज़रूरी भी है. एक टाइम था कि तभी सब लोग लगा मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, उपटन सब लगता ही लगता था. वो सब तो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स चलता ही रहता. कब नहीं था. इंडिया में तो ज़माने से देखो ब्यूटी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था. सडनली कुछ लोग आके उसको खौफज़दा कर दिए कि लोग फनी समझने लगे कि ये नहीं करना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए. बिल्कुल नेचुरल होइए. अगर आप नेचुरली गिफ्टेड हैं तो आप नेचुरल रहिए. पर जिनको ज़रूरत है उनको तो आप ना बुरा भला कहें. उनको ज़रूरत है, उनको चाहिए. तो आई एम ग्लैड कि आज के बच्चे भी नाउ दे आर नॉट हेजिटेटिंग
young adults, young working executive class, they're not hesitating. Yeah. They want to take all the help they can get. Yeah, but there's one thing that we also see on social media, that now everyone wants to look the same. Everyone wants to have the puffed up lips and a certain kind of jawline. It doesn't matter if it suits their face or not, but everyone is running after that one look. So how do you deal with people when they come to you कि मुझे ऐसा दिखना है, but you know that this won't look good on them? तो हम पहले तो काउंसलिंग करते हैं अच्छे से, और हर किसी को, जैसे आपके फीचर फाइन हैं तो आपको पाउटी लिप्स नहीं अच्छे लगेंगे। अगर आपके फीचर्स थोड़े बड़े हैं तो आपको पाउटी लिप्स अच्छे लगेंगे। कई लोगों की आंखें ड्रूपी हैं, उनको चाहिए आंखें खुली मिले तो अच्छा लगता है। कई लोगों को के चेहरे पे वो स्लीपी लुक अच्छा लगता है, तो यू डोंट डू इट। वो भी है। प्लस हम लोग कंप्यूटर पर दिखा देते हैं उनको कि अगर हम लिप्स बनाएंगे तो ऐसे दिखेंगे आप, तो आपके फेस के एकदम कॉन्ट्ररी जाता है। इट वोंट लाइक ब्लेंड विथ योर फेस स्ट्रक्चर, तो मान जाती है मोस्ट ऑफ इट। एंड एनीवेज मेरे क्लिनिक में अंडर करेक्शन करते हैं हम, कभी नहीं। इतने बड़े बड़े लिप्स तो मैंने आज तक नहीं दिया किसी को। तो कई लोगों की बहुत पतले लिप्स होते हैं, उसको भी ग्रेजुअली बढ़ाते हैं कि एकदम नेचुरल लिप्स दिखे, अंडर आई दिखे, चीक्स दिखे। ये नहीं कि बड़े बड़े हो गए, एकदम नहीं। हमारे यहाँ अंडर करेक्शन होता है, फिर दोबारा बुलाती हूँ मैं हफ्ते 10 दिन के बाद, जब वो सेटल हो जाता है कि अब ज़रूरत है तो मैं दूसरी करेक्शन करूँ। आई टेक माई टाइम, आई गो स्लो एंड ईजी। ये नहीं कि चलो आज आगे पेशेंट कल आए ना आए ठप से लगा सब मिल। I have to ask you one question. Priyanka, in many of her interviews, said that she didn't think she was pretty while growing up, and she said till her late 20s she did not feel that she was good looking. And everyone who sees her like, what rubbish, like she always, whenever we see even her old pictures, she was always stunning. The reason she won Miss India and Miss World was because, one of the reasons is because she is a stunning lady. Why do you think that she internalized that even after winning Miss India, Miss World, there were so many guys after her? She, she was very popular among the guys in her school. Why do you think that she felt the way she did? I think childhood PTSD trauma रहा होगा, क्योंकि when she was very young, Chopra's family is all gora chitta except her dad, and she went on dad, and she was not all that bad. She was very good looking, but I would say धानी complexion जो भी कहते हैं, गेहुआ complexion। पर थे कुछ लोग वहाँ उस समय जो उसको बिरेट करते थे इस बात पे, तो वो जहन में उसका रह गया। नहीं तो शी वॉज अ स्टनर। मैं उसको जब पहली बार देखी अमेरिका में, शी वॉज आई थिंक 15 साल की थी जब मैं गई। मैं तो पहचानी नहीं। 12 साल की, लंबी पतली सी, बढ़िया हेयर वेयर, सब खूब सारा हेयर होता था, बहुत खूबसूरत थी। गई थी तभी, जब मैं एयरपोर्ट आई मुझे पिकअप करने, तो मैं तो उसको क्रॉस कर गई। आई डिडंट रिकॉग्नाइज इट। शी वाज सच अ स्टनर। आई थॉट कोई वेनेजुएलन ब्यूटीफुल लड़की खड़ी है साथ में। बट शी वाज ऑलवेज अ स्टनर। तो हाँ, ये कहीं रहा होगा उसके जहन में, तभी कहती थी। तो आपने वो चीज़ कैसे, आई अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स व्हेन वी आर इन अ फैमिली वी कांट ऑलवेज जस्ट स्टैंड अप एंड से आपने ऐसे क्यों कहा, बिकॉज देयर सो मेनी डायनामिक्स एंड यू हैव टू मेंटेन रिलेशंस एंड मेनी थिंग्स, राइट? नहीं, वो कह देती है, अभी भी कहती है कि आपकी वजह से मैं ये बनी हूँ। आपने मुझे कहा तो मैंने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया। जी जी। उस टाइम आपके जहन में क्या चलता था जब कोई ऐसे बोल देता था? आई एम श्योर कोई नहीं, एक ही इंसान थे जो कहे, ऐसे कोई नहीं कहा, कभी भी नहीं। शी वॉज ऑलवेज वेरी गुड लुकिंग, इवन एज अ बेबी। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट बेबी बॉर्न, मैं अपनी तरफ से कहती हूँ। कुछ भी उसके कहीं कोई डिफेक्ट नहीं था, इतना। शी वॉज सच अ परफेक्ट बेबी। शी वॉज ऑलवेज वेरी गुड लुकिंग। तो हमारी नज़र में तो थी ही, पर लोग भी कहते थे। पर एक इंसान था जो मजाक में कहते, नथिंग सीरियस, पर वो मजाक ही उसको चोट कर गई। तो उसको पापा बैठा के भाषण दे दिया, बात खत्म हुई। आपने ये चीज़ कैसे मेंटेन की कि जब कोई इतनी छोटी उम्र में इतनी सक्सेस देखता है, इतना फेम देखता है, इट्स वेरी इजी। मतलब सब लोग बोलते हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग, बट मेरे को लगता है कि अपब्रिंगिंग कितनी भी अच्छी हो, आपके आसपास वाले
कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा खराब हो सकता है, इन द सेंस कि आप वो चीज़ घमंड में लेने लगो कि हाँ दुनिया मुझसे शुरू होती है, मुझसे ख़त्म होती है, राइट? एंड इतनी छोटी एज में जब इतना फेम देखते हो कि आप मिस वर्ल्ड बन गए, फिर आप एक्टिंग में भी इतना सक्सेस आपको इतनी जल्दी मिल गया, कुछ ही फिल्म्स के अंदर शी वॉज एन ए लिस्टर। कभी आपने देखा उनको स्लिप होते हुए कभी घर पे, और फिर आपने कैसे ये मेक श्योर किया कि वो जैसी हैं वो वैसी हम्बल ही रहे, ये बाकी जो लोग उनको चढ़ा रहे हैं वो चीज़ उन पर ना हो? क्योंकि कभी कभी होता है आपके माँ बाप बोलते हैं लेकिन आपको लगता है अरे माँ बाप हैं तो बोल रहे, जो बाकी के लोग तो मुझे इतना बड़ा स्टार समझ रहे हैं। हाउ डिड यू मेंटेन दैट? देखो ये चीज़ एन वक्त पे नहीं होता है, आपको छुटपन से ही ये बात बच्चे के जहन में डालना ही पड़ता है कि दिस टू शैल पास। सबकी लाइफ में अच्छे दिन बुरे दिन आते हैं, बुरे दिन घबराने की बात नहीं है, ये भी पास हो जाएगा, अच्छे दिन आएगा तो सींग निकालने की ज़रूरत नहीं, ये भी दिस टू शैल पास। तो ये ऐसे उनको अगर बिलीफ हो जाए इस बात का तो हमेशा ग्राउंडेड रहेंगे वो। और जब वो मिस वर्ल्ड बनी थी तो हमारे भी छोटे छोटे निकल गए थे हम तो बिलीव ही नहीं कर सके थे, हैरान थी मैं तो कि इतने सारे 90 सम कैंडिडेट्स के साथ। लेकिन मुझे पहली वहाँ उनकी 1 महीना से असेसमेंट चलता था, तो असेसमेंट के मुताबिक शी वाज फार अहेड बिकॉज ऑफ मैनर्स, हर बिहेवियर, वो कई सिर्फ ब्यूटी नहीं देखते हैं, उनका पूरा कंपोर्टमेंट देखते हैं कि कैसे ड्रेस करते, कैसे चलते हैं, कैसे लोग से बात करते, कर्टसी है कि नहीं, ये सब। तो मुझे लिफ्ट वाले ने बोला कि आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स इन अमंग द होल थिंग। थैंक यू वेरी गुड। पर डिड इट ट्रांसलेट इनटू विनिंग द थिंग? बट वी वर ऑल्सो स्टन्ड व्हेन इट हैपेंड। देखा पूरा ऑडियंस में आधी ऑडियंस इंडियंस थे एंड दे ऑल रोज एज वन कि ये इंडिया के लिए है। हमारी तो बेटी थी पर दे ऑल रोज एज वन मिस इंडिया एंड मिस इंडिया हैज़ वन द मिस वर्ल्ड। इट वाज सच अ प्राउड मोमेंट। लेकिन फिर यही हुआ कि नाउ व्हाट, पढ़ाई में इतनी अच्छी है, अब मिस वर्ल्ड बन गई तो अब क्या करेगी? क्योंकि 1 साल तो उसको मिस वर्ल्ड की ड्यूटीज़ में ही लगना था, अभी 12th करी ही थी। बट दिस टू शैल पास। फिर बस डेस्टिनी में जो आता क्या होता क्या, कभी पुश नहीं किया हमने, ना कोई मांगा ना इसको। प्रियंका को कभी पुश किया, उसकी लाइफ में जो कुछ आता रहा वही दायरे के अंदर वो चलती रही, तभी ठीक। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर किया था जब वो ऐतराज़ की शूटिंग कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो घर पे भी वैसे कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लगी थी। तो आपको उस टाइम एग्जैक्टली आपको क्या फील हुआ था कि ये शायद भटक रही है? आपको लगा कि नहीं, मैंने ये देखा कि कितना इंटेंस उसने प्रिपरेशन किया था उस कैरेक्टर के लिए। सोनिया का कैरेक्टर इजी नहीं था उसके लिए, बिकॉज दैट वाज एब्सोल्युटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट शी इज, कंप्लीटली ऑपोजिट। तो कितनी तैयारी करी थी कि वो उसको शेयर नहीं कर पाई, काम से सीधा घर ही आती थी। तो बीच में कहीं डाउन टाइम नहीं था कि मैं फ्रेंड्स के साथ घूमने निकलूं, थोड़ा माहौल चेंज करूं, ऐसा कुछ नहीं था। काम पे गई थी और घर आई थी, तो वही हरकत उसके वैसी थी। तो एक टपली लगी जागो अभी सोनिया नहीं हो, वापस आ जाओ प्रियंका अपने घर पे। जब प्रियंका ने ऐतराज़ जैसी फिल्म की, ऑब्वियसली आप फिल्म बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जो बहुत ही एजुकेशन ड्रिवन है। तो जब आपने वो स्टोरी सुनी, क्या आपको भी मन में लगा कि पता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे रोल्स कोई करता नहीं था, स्पेशली एंड इट वाज लाइक कि यू माइट बी नोन एज अ वैम्प फॉरएवर एंड शी वाज आल्सो, शी टुक हर टाइम टू से यस टू द फिल्म। बट व्हाट वर योर एप्रीहेंशंस अबाउट ऐतराज़? फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे कभी प्रियंका पे इतना भी शक नहीं था। आई कैन से विद ग्रेट प्राइड, मेरी वो गुरूर है। कभी मुझे नहीं लगा कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी कि ये भटक जाएगी। बहुत सही रही, जो करना था उतना ही करिए मुझे, और उसको समझ है ये कैरेक्टर है, ये मैं नहीं हूँ। तो कैरेक्टर को अलग करना सोनिया को बहुत डिफ़िकल्ट था, बाकी किसी किरदार में उसको ये डिफ़िकल्टी हुई नहीं थी, सिर्फ सोनिया के कैरेक्टर में था। तो जब आप बॉलीवुड में आए और आपने अपने फेवरेट स्टार्स से मिले, आप भी कहीं ना कहीं स्टार स्ट्रक हुए? पहले सब बहुत ज़बरदस्त हुई थी, बहुत ज़बरदस्त। किसने आपको सबसे ज़्यादा स्टार स्ट्रक किया है? कोई स्वीट सा इंसिडेंट जो आपको नाम नहीं बोलूँगी, पर प्रियंका को अवध सम्मान मिल रहा था, अभी वो मिस इंडिया ही थी 17 साल के। तो एक बहुत सीनियर एक्टर और प्रियंका दोनों को अवध सम्मान मिला था। स्टेज पे गए दोनों, एक
एक बॉनी और एक मतलब इतने ह्यूज पर्सनालिटी। तो मैंने उसको कहा कि मुझे ऑटोग्राफ दिलवा दो, तो कहती नहीं, हम दोनों एक मंच पे खड़े हैं, ये आप नहीं कर सकती। ठीक है, नहीं करती। लेकिन जो वो भी हिंदी में बोले, ये भी हिंदी में बोली, कमाल का स्पीच। मैं कहती हूँ एक्सटेम्पोर बोली, बहुत बढ़िया बोली। तो वो खुद आके उसको पैट ऑन द बैक दे, उनको एक लेटर लिख के भेजे कि यू रियली डिज़र्व दिस। तो आई वॉज रियली स्टार स्ट्रक दे। पहली बार मैंने ऑटोग्राफ के लिए पूछा था तो प्रियंका ने मना कर दिया, पर लेकिन मैं ले आई। कोई ऐसे स्टार थे जो आपको लगा था कि ये शायद थोड़े डरावने होंगे, बट नहीं, ये तो इतने स्वीट से निकले? क्योंकि हम लोग ज़्यादातर उस टाइम पर जैसे ही वो रोल्स करते थे उस तरह से उनका कहीं ना कहीं इमेज बन जाता था। कभी कोई ऐसा था जो आपको लगा कि ऐसे होंगे, बट उनके एकदम ऑपोजिट निकले? अमरीश पुरी जी। जी। उनका परसेप्शन लोगों को था ना कि स्कैरी थे, पर ही वॉज वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन आई हैव मेट। बहुत अच्छे, उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी। जी, जी. At this moment in life, at this point in life, when you have achieved so much, your kids are settled and you're doing well for yourself, what do you think about dating and relationships for yourself? For me? Yes. No, I never thought about that. Yeah. I'm a very self-contained, self-satisfied, important, independent woman, and I like my status. Yeah. I have many friends which I like, but I don't want anybody particular. I'm not averse for other people who want to date. They should, because to have a companion at the late stage of your life is very important. You date, you live together, you want to get married, not for any other reason except companionship. As you get older, you need someone to talk to, someone to understand you, someone to hold your hand, someone to comfort you. So I'm not against it. If anybody needs that in their life, they should get it. But as for me, no. Okay. Very satisfied person. Okay. I hope that you always remain happy. What is the next thing that you want to achieve in life right now? Won't believe it, I'm learning vocal music now. Wow. Hindi classical music is too late. My son was scandalized. He said, Mom, are you sure? What are you doing? I said, मुझे सीखना है. No kind of knowledge ever goes a waste. Absolutely. है कि नहीं? Absolutely. कुछ भी सीखना चाहो, पढ़ना चाहो, ज़रूर करो. Absolutely. ये मेरा एडवाइस है सभी को. जी. कैसा भी नॉलेज हो, अच्छा, बुरा, गंदा, जी. अगर गंदा नहीं देखोगे तो तुमको अच्छे की पता ही नहीं होगी. तो कई पेरेंट्स एकदम फॉरबिड करते कि नहीं, यू डोंट सी दिस, डोंट डू दिस, डोंट टॉक टू बैड बॉयज़. इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ अ बैड बॉय, हाउ डू यू नो व्हाट इज़ गुड? यू सी. पर हाउ टू जेंटली गेट देम आउट ऑफ दैट कंपनी इज़ अ पेरेंट्स स्किल सेट. वो पेरेंट्स का काम है, उनकी जिम्मेदारी है. पर बच्चा जाएगा ही, बहकेगा, उसको तो है ही. ग्रोइंग अप का पार्ट ऑफ इट है टू मेक मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, झाड़ो योर क्लोथ्स एंड गो, आगे बढ़ो. वहाँ पेरेंट्स को साथ होना चाहिए, ना कि निकलो मेरे घर से. नहीं. So आपने भी अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट योरसेल्फ इज दैट अबाउट यू इज दैट यू रियली आर अ किड एट हार्ट, एंड दैट्स व्हाई यू वांट टू डू सो मेनी न्यू थिंग्स इन लाइफ एंड यू आर नॉट jaded. How have you maintained that? I think a kind of curiosity that keeps a person going, keeps them young, and knowing that there's so much in the world that you want to do, want to achieve, want to see, want to feel, and I have not yet done that. So that is another motivation for me to go. Right. Now being a grandmother is like such the most beautiful thing on earth. Right. So my first grandchild, and I think I want to become a better person for her. I don't want to become a कि कोने में पड़ी हुई है दादी, नानी. How is Malvi? Is she a naughty kid? Not naughty, she's a very happy child. Yeah. Who do you think she is like more like Nick or Priyanka? अब it is too early to say. फेस तो चेंज ही होता रहता है, पर झलक निक का भी है, प्रियंका का भी, दोनों का ही है उसके अंदर. जी. एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जब प्रियंका एंड निक की शादी हो रही थी, कभी आपको ऐसे लगा कि आप, आई एम श्योर आपने भी बहुत एक्सपोजर अपनी लाइफ में देखा है, बट आपको कई एक वो था कि नॉट इंडियन, एंड कभी आपको वो फील? बिल्कुल नहीं, बाहर पढ़ के आई बच्ची. जी. वाइट ब्लैक ब्राउन में कोई फ़र्क नहीं उसने देखा. जी. और ऐसी उम्र में बाहर पढ़ी जब
ये सब चीज़ नॉर्मलाइज था उसके लिए, राइट। और हम लोग उनके साथ थे, इसका मतलब हमारे लिए भी नॉर्मलाइज थे। मेरी पूरी फैमिली अमेरिका रह रही, दिस अ वेरी नॉर्मल थिंग इन माई फैमिली एटलीस्ट। तो मुझे कभी वाइट और ब्लैक कलर से कोई चिंता नहीं थी, बस इतना था कि बहुत दूर जा रही, वो मुझे थोड़ा एप्रीहेंशन था कि इतना दूर, तो फिर लगता कि नहीं ये वर्ल्ड क्या है, 15 घंटे में तो पहुंच ही रहे। नाउ कनेक्टिविटी इज़ सो गुड, फेस टाइम, स्काइप सब कुछ है। राइट। तब वो बात नहीं रही जो जब वो गई थी पहली बार, जब तो था। आप डिड यू लाइक निक इन द फर्स्ट गो? फर्स्ट को यस, इमीडिएटली, अ वेरी वेरी लाइकेबल पर्सन। आपको सबसे अच्छा क्या लगा उनमें कि हाँ ये मेरी बेटी के लिए सही है? अगेन जैसे मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कशन किया था वैसे इसके साथ भी किया, क्योंकि एक बार देखो चेहरा तो आदमी को नहीं पहचानोगे ना कि बेटी के लिए सही है कि नहीं, तो बेटी ने चूज़ करना था, राइट। पर मुझे खुद को मुतमईन करना था। तो वी हैड अ नाइस लॉन्ग कॉन्वर्सेशन अकेले में, और मैंने समझा कि नहीं बिल्कुल सही है, जो मैं चाहती प्रियंका को के लिए वही था। जी, जाते जाते if you had to give one message to all the women out here, what message would you like to give? More power. Don't be afraid of anybody, anything, anywhere, anytime. Be confident. Thank you so much for talking to us. Thank you. Thank you. You're welcome. Hi, I'm Dr. Madhu Chopra, and you're watching Bollywood Hangama with this beautiful Sakshi, very smart, intelligent girl.